Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. Today, I'm going to start with the chapter number 4, that is price elasticity of demand. Okay, so basically, I'm going to tell you that here the term elasticity means changeability. Okay, changeability. As we know that elasticity is something that is stretchable. Yes, so here elasticity particularly means changeability. So when there is a change in price, then demand changes, we know this thing. But when there is a change in price, then by how much quantity, by how much degree, by how much percentage, this demand changes is found with the help of a tool, is found with the help of a tool, statistical tool, that is known as price elasticity of demand. Okay, sometimes it happens that we say that when price increases, then what happens with the demand, and you give the answer that when price increases, demand decreases. Yes, and sometimes it happens that when price increases, demand does not change much, because of there are many exceptions of demand which we have already studied. I have told you in my previous videos. Yes, so when there is a change in price in different cases, then how does demand responses? Okay, so to find out this, there is a need of price elasticity of demand. Okay, so what is price elasticity of demand? It is a measure of the degree of responsiveness. सबसे पहले समझो कि मेजर क्या है. मेजर का मतलब यहाँ पर है कि मैंने बोला कि डिमांड, प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज होती है, तो कितने परसेंटेज से, कितनी क्वांटिटी से चेंज होती है डिमांड, उसको मेजर करने वाला टूल. जैसे आपको मीन कैलकुलेट करना है तो आपके पास फॉर्मूला है, मीडियन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है. यस, सिमिलरली उसको कैलकुलेट करने वाला टूल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. ठीक है, सो इट इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. ये एक टूल है किसका? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का. डिग्री मतलब बाय हाउ मच, कि कितना रिस्पॉन्ड करता है डिमांड फॉर अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस. कि जब प्राइस में चेंज आता है तो उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है. प्राइस में चेंज होते ही डिमांड में डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कितना रिस्पॉन्ड करती है, उसको मेजर करने वाला टूल is known as price elasticity of demand. So price elasticity of demand is a measure of the degree of responsiveness of the demand for a commodity due to change in its price. Or we can say it is defined as the percentage change in demand for a good divided by the percentage change in the price. So this is the formula basically of elasticity of price. It is denoted by E and then small में आप P लिखोगे. So it is also in this, both letters are in small, but it is like somewhere आप थोड़ा सा बिलो करके लिखोगे. सो द सेम फॉर्मूला इज ऑल्सो अ डेफिनेशन कि प्राइस में चेंज आते ही डिमांड में कितना चेंज आया है. सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. ओके, सो एल्फ्रेड मार्शल, ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट who have given this concept of price elasticity of demand. So students, just note down this as well कि अल्फ्रेड मार्शल फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट पर वर्कआउट किया था. ओके, यस, ओके. दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज टेल्स अबाउट द परसेंटेज चेंज इन डिमांड. हमेशा परसेंटेज में पता चल जाता है कि चेंज इन डिमांड कितना है. सो बोथ इन दिस केस, बोथ चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन प्राइजेस मस्ट बी नोन इन परसेंटेजेस. Okay, then only price elasticity of demand can be calculated. Okay, that is percentage change
in quantity demanded over percentage change in price. ओके, सो प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज है. ओके, नाउ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को कैलकुलेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100. और प्राइस के चेंज को कैलकुलेट किया जाता है बाय दिस फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100. नाउ बेसिकली व्हाट इज दिस हेयर, ये डेल्टा जो है, दिस डेल्टा मीन्स चेंज. इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज. अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल क्वांटिटी जो है 30 से 40 यूनिट्स हो गई, तो इसके बीच का डिफरेंस दैट इज 10 यूनिट्स इज चेंज. ठीक है, तो डेल्टा क्यू यहाँ पर क्या हो गया 10 अपॉन क्यू. क्यू का मतलब हो गया इनिशियल क्वांटिटी दैट इज 30 इंटू 100. अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सिर्फ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैलकुलेट होकर आता है. सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट होकर आता है सिर्फ इस फॉर्मूले से. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, सी दिस विल बी कैंसल्ड, यस, और इट वुड बी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू. और इसको हम क्रॉस डिनोमिनेटर विल बिकम, इन डिवीजन है तो डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर एंड इट विल बिकम लाइक दिस. So to find out elasticity of price, you'll get a formula that is delta q upon delta p into p upon q. So this will be your formula, and one formula is this and another formula is this. So एक आप ये formula और एक आप ये फॉर्मूला लर्न करेंगे. दिस इज़ द डेरिवेशन कि किस तरह से वी गॉट दिस फॉर्मूला. ओके, सो दिस इज़ द डेफिनेशन वी कैन से, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला एज वेल, एंड बाय दिस फॉर्मूला वी गॉट अनदर फॉर्मूला. सो देयर आर टू फॉर्मूलाज for calculating elasticity of price, and by the help of these two formulas you can calculate this elasticity of price or elasticity of demand. Okay, now students, few things to note that प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ प्योर नंबर. प्योर नंबर का मतलब है दैट इट वुड नेवर बी इन फ्रैक्शन, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगी ये. ओके, यस इट कुड बी, यस सॉरी, इट कुड कम इन फ्रैक्शन. इट इज़ अ प्योर नंबर मीन्स कि इसके साथ कोई भी कंसोनेंट ऐड नहीं होगा. ओके, इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये, यानी इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं लगेगी. प्योर नंबर, सॉरी आई हैव सेड फ्रैक्शन में नहीं आएगा. नो, इट मीन्स कि देयर वुड बी नो यूनिट विद दिस. ये इंडिपेंडेंट है, इसके साथ कोई यूनिट नहीं है. ओके, इट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप. तो कहीं पर आपको अगर पता चले कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज -2 है ना, तो माइनस को इग्नोर करना है हमने, माइनस हो या ना हो, लेकिन ये हमेशा माइनस में ही होती है बिकॉज इट ओनली रिप्रेजेंट्स, ये माइनस में नहीं है, दिस माइनस सिंबल ओनली रिप्रेजेंट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, सो यू जस्ट हैव टू इग्नोर दिस साइन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिक्रीज और now we are going to start with degrees or types of price elasticity. So there are 5 degrees of price elasticity of demand. First one is inelastic demand. इनइलास्टिक का मतलब होता है, देखो इलास्टिक का मतलब होता है चेंजेबिलिटी. इनइलास्टिक का मतलब एक तरह से हम कहेंगे कि चेंज ज़्यादा नहीं आना, बट यहाँ पर हम ये भी नहीं बोल सकते बिल्कुल ना होना, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ टाइप. तो इनइलास्टिक डिमांड का बेसिकली क्या मीनिंग होता है, दैट इट इज़ सेड टू बी इनइलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो यू कैन सी that percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price. Okay, this is also known as less elastic demand. Less elastic demand. Okay, this is known as less elastic demand. यानी कि प्राइस में चेंज हुआ, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में भी चेंज हुआ, लेकिन जितने परसेंटेज से प्राइस में चेंज हुआ उससे कम परसेंटेज से डिमांड में चेंज आया.
समझ रहे हो बात को, कि परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो डिमांड में कम परसेंटेज से चेंज आया. इफ़ यू लुक हेयर, प्राइजेस 25 से 35 हो गए, है ना, 25 से 35 हो गए. तो ये कितना परसेंट है? दिस इज 40% चेंज हुआ प्राइस में. इंक्रीज हुए प्राइस, डिमांड डिक्रीज हो कि 10 to 9 हुई, लेकिन ये कितना परसेंटेज हुआ? 10% हुआ. यानी प्राइस से कम परसेंटेज चेंज डिमांड का है. अगर प्राइस 40% पड़े तो डिमांड सिर्फ 10% कम हुई. यानी डिमांड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा. ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा यानी लेस इलास्टिक, यानी कम चेंज हुई. डिमांड कम चेंज हुई. प्राइस में चेंज होने की वजह से भी डिमांड कम चेंज हुई. प्राइस के परसेंटेज से डिमांड में के परसेंटेज में कम चेंज आया. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो यही हमने बोला 10 इज लेस देन 40. ओके, so this is inelastic demand. Okay, this happens basically in case of necessity goods. For example, sugar, salt, wheat, cloths. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शुगर सॉल्ट के प्राइजेस बढ़ भी जाएं तो डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता. तो नेसेसिटी गुड्स और नेसेसरी गुड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ inelastic demand. Okay, so you have to write the definition, example, and draw the schedule, and then we'll come to the diagram. Now what will happen with the diagram? See, we have taken quantity demanded on x-axis and then we have taken prices on y-axis. Now what will happen? This is the demand curve. प्राइस में चेंज ज़्यादा आया है, डिमांड में चेंज कम आया. इफ़ यू लुक एट दिस, हम यहाँ पर P1 जो है हम 25 ले लेते हैं और इसको 35 ले लेते हैं. सिमिलरली है वी टेक 9 और इसको हम 10 ले लेते हैं. ओके, सो व्हेन प्राइजेज आर 25, डिमांड इज 10. दिस इज द पॉइंट. व्हेन प्राइजेज हैव इंक्रीज्ड अप टू 35, देन डिमांड डिक्रीज्ड टू 9. यहाँ पर ले लिया पॉइंट, मर्ज किया, we've got the demand curve. So you can see कि प्राइस में चेंज ज़्यादा है. दिस गैप इज मोर इन कंपैरिजन ऑफ दिस गैप, है ना. तो प्राइस इंक्रीज होते ही डिमांड कम हो गई, डिक्रीज हो गई. yes, and this gap is more and this gap is less, showing less elastic demand. And when you will draw this demand curve, then you will get the demand curve little bit steeper, यानी फ्लैट टाइप का लोगे मिलेगा आपको. क्यों मिलेगा? रीज़न बिहाइंड दैट परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो ज़्यादा है देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज नहीं आया, जिसकी वजह से ये स्टीपर आए. स्टीपर का मतलब होता है जस्ट लाइक कि थोड़ा सा कह लो कि स्टेयर्स फॉर्म में, है ना. तो स्टीपर है बिल्कुल, लगभग इट्स लाइक दिस. अगर ऐसे हो जाता तो थोड़ा सा फ्लैटर हो जाता. इट्स लाइक दिस, है ना. ओके, नेक्स्ट इज इलास्टिक डिमांड. इलास्टिक डिमांड इज ऑल्सो नोन एज more elastic demand. Now it is a situation in which a change in price brings about more change in quantity demanded. Now what we can write here, इसकी definition हम ये भी बता सकते हैं. It is a situation when percentage change in quantity demanded is more than परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अभी हमने पीछे बात करी थी लेस, अब हम बात कर रहे हैं मोर की. यानी प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज आ रहा है ना. यानी प्राइस का परसेंटेज कम है और क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज का परसेंटेज ज़्यादा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल नाउ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि you have to write schedule as well when you will be preparing the notes. तो प्राइस अगर मैं कहूँ कि 10 से 15 हो गए, दिस इज़ द 50%, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ डिमांड 10 से प्राइस बढ़े, डिमांड कम होगी, 20 से 10 हो गई. ओके,
चलो 100 ले लेते हैं, 100 से 150 हो गई तो दिस इज़ 50%, ये 200 से 100 हो गई तो 100%, यानी डिमांड का परसेंटेज ज़्यादा है और प्राइस का परसेंटेज कम है, यानी 50 इज़ लेस देन 100। तो क्वांटिटी डिमांड यानी प्राइस में तो थोड़ा सा ही चेंज आया लेकिन उसकी वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, तो दैट इज़ इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स ऐसा होता है, हम मान लो एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर के प्राइसेस बढ़ जाएं तो उसकी डिमांड पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उसके प्राइस हाई हैं। पहले ही लोगों का इनकम का बहुत सारा पार्ट जो है एसी की तरफ जा रहा है तो लोग उसको कम खरीदेंगे। सिमिलरली विद एलईडी टीवी, तो दिस हैपन्स विद लग्जूरियस गुड्स, जहाँ पर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, यानी लोग उसको परचेज करना बंद कर देते हैं या कम करते हैं या फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। तो प्राइस में चेंज होते ही डिमांड में ज़्यादा चेंज हुआ, दैट इज़ इलास्टिक डिमांड। ओके, एंड इफ यू ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस यू विल गेट अ डिमांड कर्व विच इज़ फ्लैटर, क्योंकि यहाँ पर प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ और डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। ओके, प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ और डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, दैट्स वाई यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस, लिटिल बिट फ्लैटर। ओके, so one more thing I want to tell you, that in inelastic demand or less elastic demand, the value of elasticity of price is less than 1. EP is less than 1. This is the value. And here EP is greater than 1. More elastic है, that's why greater than 1 है. Okay. Next is unitary elastic demand. Now unitary का मतलब होता है 1. So when the percentage change in demand is exactly equal to percentage change in price of the commodity, then demand is said to be unitary elastic. यानी अगर 10% से प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में भी 10% से ही चेंज आएगा, बिल्कुल इक्वल टू, दोनों इक्वल, नो लेस देन नो ग्रेटर देन, दोनों इक्वल चेंज है, देन दैट इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर जो ईपी की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1. ओके, and when you will draw the diagram for this, for example prices increase हुए 2 to 5, डिमांड फॉल हुई 25 to 10. ओके, यस, तो दोनों का परसेंटेज क्या है, हम मान के चल रहे हैं 10% है ना, तो दीज 2 points विल गेट, तो इस केस में व्हेन यू विल ड्रॉ द डायग्राम यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस, ठीक है, दिस इज ओनली इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड and this shape is known as rectangular hyperbola. What? Rectangular hyperbola. And here EP is equal to 1. यहाँ पर EP 1 के इक्वल आएगा. Yes? Okay. Next is perfectly inelastic demand. परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है, इनइलास्टिक हमने बोला कम इलास्टिक है ना, परफेक्टली का मतलब बिल्कुल भी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आना, प्राइस चाहे जितने मर्जी बढ़ जाए कम हो जाए पर डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, और अगर आएगा तो बहुत नेग्लिजिबल होगा. ओके, सो डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक व्हेन इट डज नॉट चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जब प्राइस में चेंज आता है पर डिमांड में चेंज नहीं आता, देन दैट इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक. ओके, यस, यस ऑल ऑफ यू. तो जब अगर कोई चेंज ही नहीं आता है तो यहाँ पर EP की वैल्यू हो जाती है 0. EP इज इक्वल टू 0. ओके, अगर हम इसका शेड्यूल बनाएं इट वुड बी लाइक दिस, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस में चाहे जितना मर्जी चेंज आ जाए डिमांड में चेंज नहीं आएगा. ओके, एंड इफ यू लुक एट द डायग्राम, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइजेस हमने लिए 10, 20, 30, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है, 10 है, तो यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट, तीनों को मर्ज करेंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. सो व्हेन देयर इज परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व देन द शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज वर्टिकल डिमांड कर्व, दिस इज वर्टिकल शेप एंड EP इज इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली का मतलब होता है जहाँ पर प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया या फिर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आया, इतना ज़्यादा चेंज आया कि दैट इज़ इनफाइनाइट,
उसे काउंट नहीं किया जा सकता, एक तरह से कह लो, ठीक है. सो इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर अ स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जहाँ पर थोड़ा सा भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, रिड्यूसेस द डिमांड टू ज़ीरो एंड अ स्मॉल डिक्लाइन इन इट्स लीड टू इनफाइनाइट इंक्रीज इन डिमांड. जहाँ पर थोड़ा सा भी प्राइस कम हुआ, थोड़ा सा भी, या नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो हाउ यू विल राइट दिस, दैट इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन देयर विल बी no change in price or negligible change in price, then the demand changes infinitely. Okay, then that is known as perfectly elastic demand. तो demand in this case is infinite. यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल बना देंगे आप लोग. सो EP की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी. प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बट डिमांड बढ़ती जा रही है ना. एक पॉइंट हमने ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, तो डिमांड इंक्रीज होते जा रही है. सो यू विल गेट द डिमांड कर्व हेयर हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व आ जाएगा आपका यहाँ पर. द शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल. ओके, सो दिस इज perfectly elastic demand. Now students, how you are going to prepare notes in this? फर्स्ट पॉइंट में आप लोग क्या करोगे, व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग द नोट्स, हाउ यू कैन प्रिपेयर. आप लोग जैसे ही आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा इन इलास्टिक डिमांड और लेस इलास्टिक डिमांड, आप फर्स्ट पॉइंट में बनाओगे, लिखोगे डेफिनेशन, ठीक है. नेक्स्ट में एग्जाम्पल इफ एनी, देन यू विल राइट द वैल्यू ऑफ EP इज इक्वल टू वट एवर, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी होगी आप बताओगे. ओके, देन यू विल राइट shape of the demand curve is this. Okay, after that you will give tabular representation and then you will give diagrammatic representation. So in this way एक point के notes आपके prepare हो जाएंगे, and this you have to do for all 5 points, and this is important students, very important types of elasticity of demand. Okay, so just prepare these notes. Thank you and have a nice day.